وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. اور بادشاہ نے کہا میرے پاس اسے لے آؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں گا. تو جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے کلام کیا تو کہا تو آج کے دن ہمارے پاس بڑا عزت والا اور امانت دار ہے. اب بڑی محفل میں حضرت یوسف کا کردار کس طرح کر کے نکھر کر سامنے آ گیا. اس کے علاوہ بادشاہ اس بات سے بھی متاثر تھا کہ کس طرح حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتا دی تھی، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا. اس کے علاوہ وہ شخص جس نے حضرت یوسف کی طرف رہنمائی کی تھی اس نے بھی حضرت یوسف کی بڑی تعریف کی. تو یہ ساری باتیں مل کر جب بادشاہ نے حضرت یوسف سے بات کی تو اس کے دل میں یہ ساری باتیں پہلے موجود تھیں. جب بات کی تو اس نے حضرت یوسف کو یہ پیشکش کی کہ تم ایسا کرو کہ تم اقتدار سنبھالو. بادشاہ نے کہا میرے پاس اسے لاؤ، میں اسے اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب بادشاہ نے اس سے کلام کیا تو کہا تو آج کے دن ہمارے پاس بڑا عزت والا اور امانت دار ہے. حضرت یوسف کہنے لگے مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جگہ دی. بادشاہ نے تمام بادشاہی حضرت یوسف کے سپرد کر دی. وہ اس میں سے جگہ پکڑتے تھے جہاں چاہتے تھے. ہم اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب یہ حضرت یوسف کی نیکی ہے کہ آپ دیکھیے بھائیوں نے ان کے ساتھ کہاں تک حسد اور بغض برتا، انہیں کنویں میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی حضرت یوسف کے بادشاہ بننے کا سبب بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ دنیا کی بات ہے.
वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि ईमान लाए और वो तकवा भी रखते थे। लिहाजा दुनिया और आखिरत का अजर लेने के लिए असूल सिर्फ एक है। कौन सा? चक्करबाजियां, धोखे, बेईमानियां नहीं, सिर्फ एक असूल है, दयानतदारी, अल्लाह का डर, नेकी, तकवा, एहसान। ये चीजें इंसान को दुनिया में भी कामयाब करती हैं और आखिरत का भी अजर ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रखा है। और हजरत यूसुफ के भाई उनके पास दाखिल हुए तो उन्होंने उनको पहचान लिया, जबकि वो उनको ना पहचानते थे। और जब उन्होंने उनका सामान तैयार किया तो वो कहने लगे कि अपने सौतेले भाई को भी मेरे पास लाना, क्या तुम देखते नहीं कि मैं माप पूरा देता हूँ और मैं अच्छा मेहमान नवाज हूँ। ये हजरत यूसुफ के इक्तदार संभालने के बाद 8वें साल का वाकया है, जबकि कहत का दौरा था। वो पहले 7 साल खुशहाली वाले गुजर चुके थे, जिसमें हजरत यूसुफ ने अपने हुस्ने तदबीर के साथ बहुत सा गल्ला स्टोर कर लिया हुआ था। इर्द गिर्द के इलाकों में गल्ला दस्तयाब ना था, चुनाचे इस तरह वो बशारत पूरी हो गई जो कुएं में गिरते वक्त अल्लाह ताला ने की थी कि हम तुम्हें उनकी खबर देंगे जबकि वो जानते भी ना होंगे। तो इनके भाई इनके पास गल्ला लेने के लिए किनान के गांव से आए। हजरत यूसुफ ने उनका जब सामान तैयार कराया, उनको पहचान लिया और उनसे कहा कि मेरे पास अपना भाई लाओ जो तुम्हारे बाप से है, यानी वो तुम्हारा जो है सौतेला भाई है। क्या तुम नहीं देखते कि मैं नाप पूरा देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज हूँ, और अगर तुम इसे मेरे पास ना लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा और तुम मेरे करीब भी ना आना। हजरत यूसुफ ने राशन सिस्टम जारी कर दिया था, हर शख्स जो कि खुद मौजूद होता उसको गल्ला मिलता। अब हजरत यूसुफ ने इनसे कह दिया कि तुम अगर अपने भाई को ना लाए तो एक तो उसके हिस्से का भी गल्ला नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तुम सबको ही गल्ला नहीं। इन पे दबाव डाल। वो कहने लगे हम अनकरीब उसको उसके वालिद को आमादा करेंगे ताकि वो उसे हमारे साथ भेज दे और हम ये काम करके रहेंगे। और हजरत यूसुफ ने अपने खादिमों से कहा इनकी पूंजी इनके सामान में रख दो, शायद कि जब वो अपने घरों में पहुंचे तो इसे पहचान लें और इस तरह वो दोबारा पलटे। तो जब वो अपने बाप की तरफ लौटे तो उन्होंने कहा ए हमारे बाप, हमें गल्ला लाने से मना कर दिया गया है, हमारे भाई को हमारे पास साथ भेजो, हम इसके लिए गल्ला लाएंगे और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। हजरत याकूब कहने लगे क्या मैं तुम पर इतबार कर लूं जैसे मैंने इससे कबल इसके भाई यूसुफ के बारे में तुम पर इतबार किया था। और अल्लाह ताला ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। जब इन भाइयों ने हजरत याकूब के सामने बिन्यामीन को लाने की इजाजत मांगी तो बूढ़े बाप के सामने कई साल पुराना वो मंजर आ गया, जबकि तकरीबन 20 साल पहले वो हीले बहानों के साथ हजरत यूसुफ को साथ ले गए थे और उस दिन के बाद हजरत याकूब को हजरत यूसुफ की शक्ल देखना नसीब न हुई थी। और जब उन्होंने अपना सामान खोला उन्होंने देखा कि उनकी पूंजी उनकी तरफ लौटा दी गई है, क्योंकि वो उनके सामान में ही रख दी गई थी। ये भी हजरत यूसुफ ने एक तरीका इख्तियार किया था ताकि वो वापस आए। एक तरीका तो ये इख्तियार किया, उनको धमकी दे दी कि अगर भाई को ना लाए वल्ला नहीं मिलेगा, और दूसरी बात ये कही कि उनका जो पैसे थे वो वापस कर दिए। तो ये दोनों तरीके हजरत यूसुफ ने इसीलिए इस्तेमाल किए ताकि वो बिन्यामीन को ले आए। जब उन्होंने अपना सामान खोला उन्होंने देखा कि उनकी पूंजी उन्हीं की तरफ लौटा दी गई है। वो कहने लगे अब्बा जान, हम और क्या चाहते हैं, ये हमारी पूंजी हमारी तरफ लौटा दी गई है, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और हमें एक ऊंट के बोझ के बराबर गल्ला मजीद मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया राशन सिस्टम था, 10 लोग थे, 10 लोगों को 10 लोगों का हिस्सा मिला। अगर ये 11 भाई जाते तो 11 भाइयों का हिस्सा मिलता और हम एक ऊंट के बराबर गल्ला मजीद लाएंगे। ये गल्ला लाना तो बड़ा आसान है। हजरत याकूब कहने लगे मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह पर मुझे पुख्ता वादा ना दो, कसम खा के वादा ना करो कि तुम उसको मेरे पास
जरूर लाओगे। हाँ, ये कि तुम खुद ही गेरे जाओ, कोई अल्लाह की तरफ से तुम पर आफत आ जाए तो अलहदा बात है, वरना मेरे साथ पक्का वादा करो कि तुम इसको मेरे पास वाकई वापस लाओगे। तो जब उन्होंने पक्का वादा कर लिया तो हजरत याकूब ने कहा कि अल्लाह इस पर जो हम कहते हैं जामिन है। और हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा, ए मेरे बेटो, एक दरवाजे से दाखिल ना होना, तुम मुतफर्रिक दरवाजों से दाखिल होना, और मैं तुम्हें अल्लाह की मशीयत से जरा भर बचा नहीं सकता। इख्तियार तो सारे का सारा अल्लाह का है। पहली दफा जब ये लोग मिस्र गए तो आम लोगों की तरह गए, क्योंकि अब हजरत यूसुफ उन्हें पहचान चुके थे, लिहाजा उनसे मिस्र में खास एजाज और इकराम का सलूक किया गया। अब ये शाही दावत पर जा रहे थे, 11 जवान बेटे और सभी खूबसूरत, इसलिए हजरत याकूब ने उन्हें मशवरा दिया कि तुम इकट्ठे दाखिल ना होना, बल्कि शहर में अलग-अलग दरवाजों से दाखिल होना। और साथ ही ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें अल्लाह की मशीयत से तुम्हें जरा बचा नहीं सकता। हुक्म इख्तियार तो सिर्फ अल्लाह का है, मैंने उसी पर भरोसा किया और उसी पर ही भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। और जब वो वहां से दाखिल हुए जहां के उनके बाप ने हुक्म दिया था, यानी अलग-अलग दरवाजों से, और उनके बाप उन्हें अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में कोई फायदा नहीं दे सकते थे। हाँ, एक अरमान था जो हजरत यूसुफ का था, तो उन्होंने उसको पूरा किया। और हजरत याकूब इल्म वाले थे इस वजह से जो हमने उन्हें सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। असल बात यह है कि हजरत याकूब ने जब इनको ये कहा कि तुम अलग-अलग दरवाजों से जाना, तो उनका मकसद ये था कि ऐसा ना हो कि तुम्हें किसी की नजर लग जाए, या ऐसा ना हो कि लोग ये समझ लें कि तुम किसी बुराई की नीयत से आए हो। इतनी बात तो हो गई, लेकिन ये बात हजरत याकूब ने भी वाजे कर दी कि अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना तुम्हारे मुकद्दर में रखा है तो मैं तुम्हें उससे बचा नहीं सकता। तवक्कुल का मतलब ये है कि इंसान अपनी तरफ से पूरी तदबीर कर ले, अपनी तरफ से पूरे असबाब मुहैया कर ले, लेकिन उनका जो अंजाम है वो अल्लाह के हवाले कर दे। तवक्कुल के ये मानी है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। बहुत से लोग तवक्कुल का ये माना कर लेते हैं कि खुद हाथ पांव तोड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि सारा काम ही अल्लाह कर लेगा। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलुल्लाह, क्या ऊंट का पांव बांध कर हम तवक्कुल करें कि पांव खोल कर? आपने फरमाया था पांव बांधो और फिर तवक्कुल करो। तो तमाम ज़ाहिरी असबाब को अख्तियार कीजिए, और लेकिन अकीदा यह होना चाहिए कि इन ज़ाहिरी असबाब का फायदा तभी होगा जब अल्लाह चाहेंगे। ये असबाब तब मुफीद होंगे जब अल्लाह की मशीयत होगी, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो तमाम हम ज़ाहिरी असबाब हम इख्तियार क्यों ना कर ले, तब भी फायदा नहीं होगा। ये है असल तवक्कुल। हजरत याकूब ने भी ज़ाहिरी तदबीर तो इख्तियार कर ली, लेकिन साथ ही उन्हें यह कह दिया कि अल्लाह की मशीयत के मुकाबले में मैं तुम्हें जरा बराबर फायदा नहीं दे सकता। तो ये जो तदबीर और तकदीर, इसका जो बाहमी रब्त है, इसके बारे में अक्सर लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे होते। और जब वो हजरत यूसुफ पर दाखिल हुए, हजरत यूसुफ ने अपने भाई को जगह दी और कहा, मैं तेरा भाई हूँ, तो तू मायूस ना हो जो वो करते हैं। अब ज़ाहिर बिन यमीन आपका माँ जाया भाई था। हजरत यूसुफ ने उन्हें सीने से लगाया और उनके साथ अपने जो थी दिल की बातें करने लगे, और साथ ही उन्हें तसल्ली भी दी कि अब ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, अब तुम मेरे पास रहोगे। तो जब हजरत यूसुफ ने उनका सामान तैयार कराया तो अपने भाई के सामान में अपना पानी पीने का प्याला रख दिया, और एक ऐलान करने वाले ने ऐलान किया, ए काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो पलट कर आए और उन्होंने पूछा, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई? वो कहने लगे, हम बादशाह का प्याला हमें नहीं मिल रहा, और जो उस प्याले को लाएगा उसको एक ऊंट के बोझ जितना गल्ला इनाम में मिलेगा, और मैं इस चीज का जामिन हूँ। वो लोग कहने लगे, अल्लाह की कसम,
तुम जानते हो हम इसलिए नहीं आए कि जमीन में फसाद करें, और ना ही हम चोर हैं। बड़े इज्जत वाले खानदान से ताल्लुक रखते थे, एकदम से बोले कि तुम्हारा क्या ख्याल है, हम यहाँ चोरी करने आए। वो पूछने लगे, अच्छा अगर तुम झूठे हुए तो बताओ फिर उस चोर की सजा क्या होगी। हजरत यूसुफ के भाई कहने लगे, उसकी सजा ये है कि जिसके सामान में वो प्याला पाया गया तो वो खुद ही उसकी सजा होगा। हजरत याकूब की शरीयत में चोरी की यही सजा थी कि जो शख्स चोरी करे, चोर को 1 साल उसकी गुलामी, चोर जिसकी चोरी करे 1 साल तक उसकी गुलामी करे। इसी तरह हम जालिमों को सजा देते हैं। तो उन्होंने उनके सामान की तलाशी लेना शुरू कर दी, अपने भाई के सामान से कबल कि कहीं शक ना हो जाए। फिर उसको अपने भाई के सामान से निकाल लिया। हमने इसी तरह यूसुफ के लिए तदबीर की। वो अपने भाई को बादशाह के कानून में ना ले सकता था। मिस्री कानून में चोर को जेल की सजा मिलती थी। तो अल्लाह ताला ने उनके मुंह से खुद निकलवा दिया कि जो चोर होगा तुम उसको अपने पास रख लेना। हमने इसी तरह यूसुफ के लिए तदबीर की। वो मिस्र के कानून के मुताबिक अपने भाई को नहीं ले सकता था। हाँ, अगर अल्लाह चाहता। हम दर्जे बुलंद करते हैं जिसके हम चाहते हैं, और हर साहिब इल्म से वो ज्यादा इल्म वाला है। वो भाई कहने लगे, अगर इसने चोरी की है तो इसके भाई ने इससे कबल भी चोरी की थी। अब जब ये बात हुई तो फौरन उनके भाई कहने लगे कि अब इसने बिन्यामीन ने चोरी की है, तो इससे पहले इसका एक भाई होता था, उसने भी अपने बचपन में चोरी की थी। हजरत यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तो हजरत यूसुफ ने इस बात को अपने दिल में छुपा लिया और सब्र और तहम्मुल के साथ उनके इस इल्जाम को भी सुन लिया और उन पर कोई बात वाज़ेह न की, और दिल में कहा, तुम बहुत ही बुरे लोग हो और अल्लाह ताला जानता है जो तुम बयान करते हो। वो कहने लगे, ए अजीज, बेशक इसका बाप बहुत बूढ़ा है, हम में से एक को ले लो, हम तुझे देखते हैं कि तू नेक है। बात फिर वही हुई। हजरत याकूब को फिक्र था कि जैसे तुमने यूसुफ के साथ सलूक किया था वही सलूक इसके साथ ना करना, और उन्होंने बड़े वादे और वईद लेकर बिन्यामीन को भेजा था। यहाँ फिर वही सूरत आ गई। अब ये बादशाह के पास दोबारा पहुंचे और उसे कहने लगे कि हम 10 भाइयों में से एक भाई को रख लो, हम देखते हैं कि तुम बड़े नेक हो, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हजरत यूसुफ कहने लगे, अल्लाह की पनाह, हम तो उसे ही लेंगे जिसके पास हमने अपना सामान उसके पास पाया है, हम तो जालिम होंगे। तो जब वो हजरत यूसुफ से मायूस हो गए तो अलहदा होकर मशवरा करने लगे। उनका बड़ा भाई कहने लगा, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे बाप ने तुमसे पक्का वादा लिया था अल्लाह के नाम पर, और इससे कबल जो तुमने यूसुफ के बारे में ज्यादती की थी। बड़े भाई को सारी बातें याद आना शुरू हो गई। हजरत यूसुफ को कुएं में कैसे फेंका, हजरत याकूब का गम, भाइयों के कौलो इकरार, वालिद की ताकीद के बिन्यामीन को हिफाजत के साथ वापस लाना, तो ये सारी बातें बड़े भाई को याद आने लग गई। तो मैं जमीन को न छोड़ूंगा जब तक कि मेरा बाप मुझे हुक्म न दे या अल्लाह मेरे लिए फैसला ना करे। तो बड़ा भाई कहने लगा, मैं अब बाप को फेस नहीं कर सकता, मैं यहीं रहूंगा जब तक कि मेरा बाप खुद मुझे ना कहे कि तुम मेरे पास आओ या फिर मुझे मौत आ जाए। और अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है। तुम अपने बाप की तरफ पलट कर जाओ तो तुम कहो, ए हमारे अब्बा जान, तेरे बेटे ने चोरी की है और हमने वही गवाही दी जो हम जानते हैं, और हम गैब के में हिफाजत करने वाले ना थे। अगर हमारे सामने चोरी करता हम उसे रोक लेते, उसने हमें पता ही नहीं चलने दिया और चोरी कर ली, तो अब्बा जान हम कुछ कर नहीं सकते थे। और उन बस्ती वालों से पूछ लीजिए जिसमें हम थे, और उस काफले वालों से भी पूछ लीजिए जिसमें के साथ हम आए हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। हजरत यूसुफ कहने लगे, तुम्हारे दिलों ने एक बात घड़ ली है तो सब्र ही अच्छा है। शायद कि अल्लाह ताला मेरे पास इन सबको ले आए, क्योंकि वो जानने वाला और हिकमत वाला है। हजरत याकूब को उस ख्वाब की वजह से पता था
कि एक वक्त आएगा जब 11 के 11 बेटे हजरत यूसुफ के सामने सजदा करेंगे और ये 12 इकट्ठे होंगे। तो हजरत याकूब कहने लगे कि ये तुम्हारे नफ्सों ने एक बात घड़ ली है, वो अल्लाह ताला वो वक्त लाए जब तुम सारे मेरे पास इकट्ठे आ जाओ। और अब तो आपको पता है हजरत यूसुफ भी मौजूद नहीं थे, बिन्यामीन को हजरत यूसुफ ने रख लिया और इनका सबसे बड़ा भाई यहूदा जो था उसने खुद आने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि इस वक्त ये 9 भाई जो थे हजरत याकूब के सामने मौजूद थे। और हजरत याकूब इनसे फिर गए और कहने लगे, हाय अफसोस यूसुफ पर। उनकी आंखें गम की वजह से सफेद हो गई थीं और वो गम से भरे हुए थे। गम हजरत याकूब के रगो पे में सरायत कर चुका था। इसी गम के असर से आपकी बिनाई भी जाती रही थी। वो भाई कहने लगे, अल्लाह की कसम आप तो यूसुफ को याद ही करते रहेंगे जब तक के खुद को गम में बुला न दे या हिलाक हो जाएं। आप तो मर ही जाएंगे उसके गम में, छोड़ भी दें इस झगड़े को। हजरत याकूब कहने लगे, मैं अपना शिकवा और गम अल्लाह ही से बयान करता हूँ और मैं अल्लाह से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अपना शिकवा अल्लाह से बयान करना सबर के मनाफी नहीं है। हजरत याकूब ने भी अपना शिकवा अल्लाह से किया। अल्लाह के सामने अपने गम का शिकवा भी कीजिए, अल्लाह के सामने रोइए भी, क्योंकि ये रोना अल्लाह को बड़ा पसंद है। हाँ, ये शिकवा लोगों के सामने ना कीजिए, ये बेसब्री है। अल्लाह के सामने अपना गम बयान करना या अल्लाह ताला से अपनी मुसीबत का जिक्र करना, ये ऐन नेकी है। ऐ मेरे बेटो, जाओ यूसुफ को तलाश करो, उसके भाई को भी, और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर लोग ही मायूस होते हैं। मायूसी कुफर है। और उस वक्त भी हजरत याकूब ने अपने बेटों से यही कहा कि तुम 9 भाई दोबारा मिस्र जाओ और बाकी तीनों भाइयों को भी तलाश करो, यूसुफ को भी, बिन्यामीन को भी, और 7 बड़े भाई को भी साथ लेकर आओ। और मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफर होती है। कठिन से कठिन हालात में भी अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह मोजज़े भी कर देता है, वो मुसब्बिबुल अस्बाब भी है, और वो ऐसी जगह से अता करता है जहां से आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी जगह से अता करता है जहां पे इंसान को ख्याल तक नहीं होता। लिहाजा अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह से उम्मीद और अल्लाह की रहमत, ये सब पर एक मुसलमान का ईमान होता है। और अगर ये ईमान बाकी ना रहे, मायूसी हो जाए, तो फिर मायूसी कुफर होती है। याद रखिए, जब वो हजरत यूसुफ के पास आए, ये उनका तीसरा सफर है मिस्र का, कहने लगे, ए अजीज, हमें और हमारे घर वालों को तकलीफ आई है और हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, तो हमारे लिए नाप पूरा कर दो और हमारे ऊपर सदका करो। अब हमारे पास पैसे भी कोई नहीं है, तो हमारे पास सदका करो। यकीनन अल्लाह ताला सदका करने वालों को जजा देता है। अब जब भाइयों का ये हाल देखा कि भाई सदका मांग रहे हैं, क्या ख्याल है, एक आम इंसान का भी दिल भर आता है। और हजरत यूसुफ तो इंतहाई नेक अखलाक वाले और इंतहाई मेहरबान थे। दिल भर आया और कहने लगे, क्या तुम जानते हो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था जबकि तुम जाहिल थे? वो कहने लगे, क्या तू ही यूसुफ है? कहा, मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया है। हजरत यूसुफ ने जब ये बात कही तो उन्हें पता था कि इस वाक़े का यूसुफ के अलावा किसी और को हमने पता नहीं बताया। उन्होंने तो अपने बाप को भी नहीं बताया, तो इसलिए वो चौंक के पूछने लगे कि अच्छा, क्या तू तो यूसुफ नहीं? हजरत यूसुफ ने फिर अपने आप को उस वक्त एक्सपोज कर दिया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई बेंजामिन है। अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया। जो अल्लाह से तकवा रखता है और सबर करता है तो अल्लाह ताला नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। यहाँ भी आपको क्या सबक मिला कि जो अल्लाह से डरता है और जो सबर करता है तो अल्लाह ताला उसकी नेकी जाया नहीं करते, उसको दुनिया में भी जजा देते हैं, आखिरत की जजा अलहदा होती है।
वो कहने लगे अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने तुझे हम पर फजीलत बख्शी है और हम ही खताकार थे। अब हजरत यूसुफ की अखलाकी बरतरी जरा देखिए। उनसे ये नहीं कहा कि तुमने मुझे कुएं में डाल दिया, बल्कि क्या कहा, ये कहा कि तुम जानते हो जो तुमने यूसुफ के साथ किया था जबकि तुम जाहिल थे। सिर्फ इतनी बात करके बात खत्म कर दी, उनकी गलती का जिक्र तक नहीं किया। इतना बड़ा अखलाकी मायार ये अंबिया इसके हामिल होते हैं। और कुरान हम अपने पढ़ने वालों से भी ये मुतालबा करता है कि पढ़ने वालों का भी वही मायार होना चाहिए। हम में से कोई होता तो क्या कुछ ना करता। अंदाजा कीजिए, इतना भी नहीं जताया कि तुमने मुझे कुएं में फेंक, सिर्फ इतना कर क्या, जबकि तुम जाहिल। वो कहने लगे अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें हम पर फजीलत बख्शी है और हम ही खताकार थे। कहा तुम पर आज के दिन कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे और वो ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अंदाजा कीजिए, जताया तक नहीं, ये भी इंतजार नहीं किया कि वो कहें कि भाई हमें माफ कर दो, ये भी इंतजार नहीं किया, खुद ही उनसे कह दिया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। तो इतना बड़ा दिल और इतनी बड़ी माफी ये इस्लाम अपने मानने वालों से तकाजा करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखिए। मक्का वालों ने कौन सा जुल्म था जो आप पर नहीं किया था, कौन सी ज्यादती थी जो आपने नहीं भुगती थी। लेकिन जब मक्का फतह हो गया तो आप चाहते तो उन सारों को लौंडी गुलाम बना लेते, एक एक जुल्म का बदला ले लेते, उनका माल, उनकी जानें, उनका इलाका, उनकी घर कब्जे में कर लेते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने भाई यूसुफ की तरह उन्हें जताया तक नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। उनसे सिर्फ इतना कहा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम अंतुमुत तलका, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, तुम आज के दिन आजाद हो। कौन करेगा ये कौन इख्तियार करेगा ये रवैया, बताओ तो सही जरा। बातें सुननी तो बड़ी आसान है। ये किस्से अल्लाह ताला ने, कुरान अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि आपको किस्से सुनाए जाए। कुरान इस किस्से के जरिए भी आपकी तरबियत करना चाहता है। हाँ जी, कौन करेगा इतनी माफी, कौन करेगा इतना दिल खुला, बताइए तो सही। ये किस नबी का तरीका है? हजरत यूसुफ का भी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। क्या कोई नहीं करेगा? कि कौन करेगा? कौन करेगा? जरा वादा तो कीजिए, वादा तो कीजिए, नियत तो कीजिए, इरादा तो करें, इरादा तो करें। कहा आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे और अल्लाह ताला सबसे बेहतर रहम करने वाला है। जाओ मेरी इस कमीज को ले जाओ, इसे मेरे बाप के चेहरे पे डालना, वो तुम्हारी उसकी बिनाई वापस आ जाएगी और मेरे पास अपने सारे घर वालों को लेकर मेरे पास आ जाओ। और जब ये काफिला रवाना हुआ, हजरत याकूब ने कहा मुझे यूसुफ की खुशबू आती है, अगर तुम मुझे पागल ना समझो। नबियों के आलिमुल गैब होने की हकीकत इतनी ही है। हजरत यूसुफ किनान में ही एक कुएं में गिरे हुए हैं, हजरत याकूब को खुशबू नहीं आती। अब मीलों दूर, सैकड़ों मील दूर मिस्र में हैं, हजरत याकूब को खुशबू आने लग पड़ी। असल बात यह है, अल्लाह जब चाहते हैं, जितना चाहते हैं, उतना इल्म गैब अपने अंबिया को अता कर देते हैं। वो कहने लगे अल्लाह की कसम, बेशक तू अपनी पुरानी गुमराही में है। तो जब खुशखबरी लाने वाला आया तो उसने हजरत याकूब के चेहरे पर वो कमीज डाली तो उनकी बिनाई वापस आ गई। हजरत याकूब कहने लगे क्या मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह से वो चीजें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वो भाई कहने लगे हमारे बाप, हमें माफ कर दीजिए हमारे गुनाह, हम ही खताकार थे। हजरत याकूब कहने लगे मैं जल्दी तुम्हारे लिए अपने रब से इस्तिग़फ़ार करूंगा तहज्जुद के वक्त, बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। तो जब वो हजरत यूसुफ पर दाखिल हुए तो हजरत यूसुफ ने अपने माँ बाप को अपने पास बिठाया और कहा तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ। अल्लाह ने चाहा अमन के साथ जब हजरत याकूब और उनका खानदान हजरत यूसुफ की दावत पर मिस्र आए
तो हजरत यूसुफ और उनके फौजी और सिविल अफसरों ने हदूद मिस्र पर उनका शानदार इस्तकबाल किया, उन्हें गले लगाया। उस दिन पूरे मिस्र में जश्न का सामान था। औरतें, बच्चे और मर्द सब इस जुलूस को देखने के लिए आए। मजीद इज्जत अफजाई के लिए हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन को अपने तख्त पर अपने साथ बिठाया। ये वालिदा हजरत यूसुफ की सौतेली वालिदा होंगी, क्योंकि उनकी सगी वालिदा तो फौत हो चुकी थी। जब खानदान के अफराद ने हजरत यूसुफ की ये इज्जत देखी तो 11 भाई, वालिद और वालिदा सबके सब हजरत यूसुफ के सामने सजदा रेज हो गए। ये सजदा ताज़ीमी था जो कि पहली उम्मतों में जायज था, लेकिन अब मंसूख हो चुका। यही इस ख्वाब की ताबीर थी जिसमें हजरत यूसुफ ने 11 सितारे और सूरज और चांद को सजदा करते हुए देखा था। ख्वाब और उसकी ताबीर पूरे होने में 40 साल का अरसा था। और हजरत यूसुफ ने अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और वो उनके भाई उसके लिए सजदे में गिर गए। हजरत यूसुफ ने कहा, मेरे बाप, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो मुझे पहले से आया था। मेरे रब ने उसे सच्चा बना दिया और मेरे रब ने मुझ पर उस वक्त भी एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला और आप सबको देहात से यहाँ ले आया। इसके बाद के शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फितना खड़ा कर दिया था। अब यहाँ भी भाइयों को कोई बात नहीं की। बात किसके जिम्मे लगा दी? शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फितना खड़ा कर दिया था। इतना बड़ा दिल कहाँ से आएगा? लेकिन हमें ये अपनी तरबियत करनी पड़ेगी। हम तो छोटी छोटी बातों पर मर जाते हैं। फलां ने ये बात की तो की क्यों? उसको समझ नहीं आया था वो किसको ये बात कर रहा है। तो ये अंबिया के नमूने अल्लाह ताला हमारे लिए इसलिए रखते हैं ताकि हम उनकी पैरवी कर सकें। जबकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान वसवसा डाल दिया था, मेरा रब बड़ी बारीक तदबीरों से अपनी मशीयत को पूरा करता है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। यहाँ भी भाइयों के किरदार पर कोई हरफ नहीं आने दिया, बल्कि बेहतरीन अंदाज में जिक्र किया। ए मेरे रब, तूने मुझे बादशाही अता की और तूने मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। ए जमीन व आसमान को पैदा करने वाले, तू मेरा दुनिया और आखिरत में दोस्त है। मुझे मुसलमान करके फौत करना और मुझे नेकों के साथ मिला देना। ये है इस वाक़े का क्लाइमैक्स। सारे हजरत यूसुफ के सामने सजदा रेज है और हजरत यूसुफ उस वक्त किसी फख्र और गरूर में आने की बजाय अपने अल्लाह के सामने दुआएं करने लग जाते हैं। क्या दुआएं करते हैं? ए मेरे आका, तूने मुझे बादशाही दी, तूने ही मुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाया। तू जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। तू मेरा दुनिया में भी दोस्त है, तू मेरा आखिरत में भी दोस्त है। मुझे मुसलमान करके फौत करना और मुझे नेकों के साथ मिला देना। ये होता है नबियों का किरदार। आम दुनियादार होता वो कहता, देखो मेरी कैसी बादशाही, आज मैं सब पे गालिब आ गया, मेरी शानो शौकत। नबी को उस वक्त अल्लाह की नेमतें याद आती हैं और यही एक मोमिन का तरीका होना चाहिए। उस वक्त इंसान को अल्लाह की रहमतों पर शुक्र उसके दिल से फूटना चाहिए और फिर साथ ही अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह तू मेरा दुनिया में भी दोस्त, तू मेरा आखिरत में भी दोस्त है। अल्लाह मुझे मुसलमान करके फौत करना और मेरा हशर मशर नेकों के साथ करना। दुनिया की नेमतों के साथ साथ मुझे आखिरत की नेमतें भी अता फरमाना। ये गैब की खबरें हैं, हम उन्हें आपकी तरफ वही करते हैं। ए नबी, आप उनके पास नहीं थे जबकि उन्होंने एक बात पर इत्तफाक कर लिया था। किस बात पर? कि इसको कुएं में डाल दो, और वो चाले चल रहे थे। और अक्सर लोग, और अगर आप चाहें, ईमान नहीं लाएंगे। अब कुफारे मक्का ने यहूद के साथ साजिश करके ये सवाल अल्लाह के रसूल पर किया था ताकि उन्हें उन पर एतराज कर सकें। अब जब अल्लाह के रसूल इस चैलेंज में पूरे उतरे तो तकाजा ये था, अखलाक का तकाजा ये था कि वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं
کہ اکثر لوگ اگرچہ آپ لالچ بھی کریں ایمان نہیں لائیں گے اور آپ ان سے کسی اجر کو نہیں مانگتے. یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان